contact me for class 6 to 12 any subject. Now, NCERT solution for class 10 social economics chapter 1 development vikas. And the first question is development of a country can generally be determined by. सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला है इट्स पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, औसत साक्षरता स्तर, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स हेल्थ पीपल, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। आंसर ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। Which of the following neighboring country has better performance in terms of human development than India? निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाजे से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। आंसर श्रीलंका। Now, assume there are 4 families in a country. The average per capita income of this family is 5,000. If the income of 3 families is Rs 4,000, 7,000, 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों का प्रति व्यक्ति 5,000, 4,000 और 7,000, 3,000 रुपये हैं। तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? 7,500, 7,500, 3,000, 2,000, 6,000। आंसर 6,000, 6,000। Now question number 4. What is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of the criterion, if any? विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमा है तो बता क्या है? In the World Development Report 2006, the World Bank has used the criterion of average income or per capita income in classifying different countries. विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में विश्व बैंक ने विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की कसौटी का उपयोग किया है। The average income of the per capita income is the total income of the country divided by its population. औसत आय या प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने का पर प्राप्त होती है। According to the WDR 2006, countries are classified as mentioned below. WDR 2006 के अनुसार देश को नीचे उल्लिखित अनुसार वर्गीकृत किया गया है। रिच कंट्रीज with per capita income of 45300, 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries. अमीर देश, प्रति व्यक्ति आय वाले देश 2004 में 4,53,000 प्रति वर्ष और इससे अधिक जनसंख्या वाले अमीर देश कहलाए। लो इनकम कंट्रीज विथ पर कैपिटल इनकम ऑफ 37 यानी 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। निम्न आय वाले देश, प्रति व्यक्ति आय वाले देश 37,000 या उससे कम को कम आय वाले देश कहा जाता है। India comes in the category of low income country because its per capita income is 2004 was just
2800 पर एनम। भारत निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में आता क्योंकि 2004 में इसकी प्रति व्यक्ति आय मात्र थी 28,000 प्रति वर्ष। रिच कंट्री excluding country of Middle East and Cretan, other small countries are generally called development country। मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य छोटे देशों को छोड़कर अमीर देशों को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। Limitation of the certain are as mentioned below। मानदंड की सीमाएं नीचे उल्लेखित है। It does not tell us how this income is distributed among people। यह हमें नहीं बताता कि यह आय लोगों के बीच कैसे वितरित की जाती है। A country may have more equitable distribution। किसी देश में अधिक समान वितरण हो सकता है। People may be neither very rich nor extremely poor। लोग न तो बहुत अमीर हो सकते और न बहुत गरीब। In other country with same average income, one person may be extremely rich while other may be very poor। समान औसत आय वाले दूसरे देश में एक व्यक्ति अत्यधिक अमीर हो सकता है जबकि अन्य बहुत गरीब हो सकता है। Some the method of average income does not give correct picture of a country। अतः औसत आय की पद्धति किसी देश की सही तस्वीर नहीं प्रस्तुत करती है। This system hide disparities among people। यह व्यवस्था लोगों के बीच असमानताओं को छुपाती है। In what respect? In the certain use by the criterion used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक को मानदंड से अलग हैं? आंसर, the criterion used by World Bank, the average income either per capita income in the main criterion used by the World Bank in classifying different countries। विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मानदंड औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में उपयोग किए जाने वाले मुख्य मानदंड हैं। According to the World Development Report 2006 published by the World Bank, countries with per capita income of 10066 per annum and above in 2004 are called rich or developed countries। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय 10066 प्रति वर्ष और उससे अधिक वाले देशों को अमीर या विकसित देश कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, कंट्रीज विद पर कैपिटल इनकम ऑफ $8 to $5 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। दूसरी ओर जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $825 या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाले देश कहा जाता है। द UNDP compares countries based on SDIE on the educational level of the people, their health status and per capita income or average income। UNDP देशों की तुलना HDI लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के आधार पर करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट
index used by UNDP is better because it is wider indicator in which beside per capita income, health and education are also included. यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक बेहतर है क्योंकि यह एक व्यापक संकेतक है जिसमें प्रति व्यक्ति आय के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल है। Why do we use average? Are there any limitation of their use? Illustrate with our example related to the development. हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर: We use averages for comparison between two countries, two persons or any two or more things. हम दो देशों, दो व्यक्तियों या किन्हीं दो या अधिक चीज़ों के बीच तुलना के लिए औसत का उपयोग करते हैं। There are the following limitation to the use of average. औसत के उपयोग की निम्नलिखित सीमाएं हैं। Average do not tell us about similarities or difference बिटवीन टू कंट्रीज और पर्सन और थिंग्स। हम औसत हमें दो देशों, व्यक्तियों या चीज़ों के बीच समानता या अंतर के बारे में नहीं बताते हैं। बाय एवरेज ओनली वन एस्पेक्ट इनकम साइज ईटीसी इन केस ऑफ कंट्री मार्क और पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट एक्टिविटीज ईटीसी इन केस ऑफ स्टूडेंट कैन बी कंपेयर्ड। औसत के आधार पर देश के मामले में केवल एक पहलू आय, आकार आदि, छात्र के मामले में अंक या खेल गतिविधि में भागीदारी आदि की तुलना की जा सकती है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ और अचीवमेंट आर नॉट कंपेयर्ड। ऑल ओनली वन एक्सेप्टेड एस्पेक्ट इज कंपेयर्ड। इट डज नॉट गिव टू पिक्चर और डिफरेंट कंट्रीज, पर्सन और थिंग। क्योंकि केवल एक पहलू की तुलना की जाती है या विभिन्न देशों, व्यक्तियों या चीज़ों को सही तस्वीर नहीं देता है। Now, for example, student differ in high health, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। उदाहरण के लिए छात्र कद, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचियों में भिन्न होते हैं। द हेल्थ स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट इंटेलिजेंट और टॉपर इन स्टूडेंट। सबसे स्वस्थ छात्र सबसे बुद्धिमान या पढ़ाई में अव्वल नहीं हो सकता। सिमिलर इन द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री ऑफ स्टेट। देशों या राज्यों के संबंध में भी यही स्थिति है। ए कंट्री में बी ahead than the other country in one field but may lag behind in the other field. एक देश में दूसरे क्षेत्र में आगे हो सकता लेकिन दूसरे देश में पिछड़ सकता है। सो एवरेज डू नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर। इसलिए औसत सही तस्वीर नहीं देते हैं। Kerala with lower per capita income has a better human development ranking than Punjab. Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare state. Do you agree? Discuss. प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरला का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मानदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। आंसर: इट इज करेक्ट टू से दैट per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states due to reason as mentioned below.
यह कहना सही है कि प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल भी उपयोग मानदंड नहीं है और नीचे बताए गए कारणों से राज्यों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू नीड टू लिव वेल। पैसे से वे सभी वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता है। Income by itself is not completely adequate indicator of material goods and service that citizens are able to use। आय अपने आप में उन भौतिक वस्तुओं सेवाओं का पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है जिनकी नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। There cannot be a pollution-free environment in a colony of rich people unless the whole community टेक प्रिवेंटिव स्टेप। अमीर लोगों को कॉलोनी में तब तक प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं हो सकता जब तक कि पूरा समुदाय निवारक कदम नहीं उठाता। समटाइम्स इट इज बेटर टू हैव कलेक्टिव सर्विस लाइक सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी देन टू हैव इंडिविजुअल सिक्योरिटी फॉर वन हाउस। कभी कभी किसी के सामने अपने घर के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा की तुलना में पूरा इलाके के लिए सुरक्षा जैसा सामूहिक सेवाएं रखना बेहतर होता है। अगेन ए स्कूल में बी ओपन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द होल कम्युनिटी देन फॉर वन और टू चिल्ड्रन ऑफ ए रिच पर्सन। फिर किसी अमीर व्यक्ति से के एक या दो बच्चों के बजाय पूरे समुदाय के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जा सकता है। Kerala has a better human development ranking than Punjab। केरल की मानव विकास रैंकिंग पंजाब से बेहतर है। इन केरला infant mortality rate is 11 in comparison of to 49 in Punjab, where the per capita income is much more than Kerala। केरला में शिशु मृत्यु दर 11 है जबकि पंजाब में 49, जहां प्रति व्यक्ति आय केरल से कहीं अधिक है। इट इज 2600 वेयर इन केरला इट इज 22800। यह है 26,000 जबकि केरला में यह है 22,800। इट इज बिकॉज केरला हैज एडिक्वेट बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरला में पर्याप्त बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाएं हैं। सिमिलरली उसी प्रकार इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शन वेल एंड पीपल गेट राशन रेगुलरली वेयर इन सम स्टेट राशन शॉप डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। इसी तरह कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS अच्छी तरह से काम करता है और लोगों को नियमित रूप से राशन मिलता है, जबकि कुछ राज्यों में राशन की दुकानें ठीक से काम नहीं करती है। एट सच प्लेसेस पीपल फेस ए शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स दैट अफेक्ट देयर हेल्थ। thus it is clear that the state should not be compared on the basis of per capita income alone। ऐसी जगहों पर लोगों को अनाज की कमी का सामना करना पड़ता है जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्यों की तुलना केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। Find out the present source of every energy that are used by people in India। What could be the other possibility 50 years from now। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावना हो सकती है। आंसर द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर इलेक्ट्रिसिटी कोल क्रूड ऑयल काउडंग एंड सोलर एनर्जी। भारत के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के वर्तमान स्रोत बिजली कोयला कच्चा तेल गोबर और सौर ऊर्जा है। अदर पॉसिबिलिटी 50 years from now could include ethanol biodiesel nuclear energy and better utilization of wind energy, especially with the
इमिनेंट डेंजर ऑफ ऑयल रिसोर्स रनिंग आउट। अब से 50 साल बाद अन्य संभावनाओं में इथेनॉल, बायोडीजल, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बेहतर उपयोग शामिल हो सकता है, खासकर तेल संसाधनों के खत्म होने के आसन्न खतरे को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, वाई द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, sustainable development means that development should meet the need of the present without comparing the ability of future जनरेशन टू मीट देयर नीड। सतत विकास का अर्थ है कि विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। हाउएवर, सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not सस्टेनेबल। हालांकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध से कई वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर टिकाऊ नहीं है। द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट सेंचुरी। सतत विकास का मुद्दा पिछली सदी में दुनिया की तेजी से हुए औद्योगिकरण से उभरा है। It is felt that economic growth and industrialization have led to the reckless exploitation of natural resources। ऐसा महसूस किया गया कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ। ऑन द अदर हैंड, द स्टॉक ऑफ नेचर रिसोर्स आर लिमिटेड। दूसरी ओर प्रकृति संसाधनों का भंडार सीमित है। सो द ग्रोथ ऑफ ऑल कंट्रीज इन द फ्यूचर इज लाइकली to be endangered if the limited resources are completed exhausted। इसलिए यदि सीमित संसाधन पूरी तरह समाप्त हो गए हैं तो भविष्य में सभी देशों का विकास खतरे में पड़ने की संभावनाएं हैं। Now, under these circumstance, the issue of sustainability has become important of development। इन परिस्थितियों में विकास के लिए स्थिरता का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया। ए नंबर ऑफ रिसोर्स आर बीइंग ओवर यूज। अनेक संसाधनों का तदुपयोग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस देयर थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आइदर पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी द वाटर लेवल हैज डिक्लाइंड ओवर 4 मीटर। उदाहरण के लिए देश के कई हिस्सों यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भूजल के अत्यधिक उपयोग से गंभीर खतरा है। जल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इफ वी गो ऑन ओवर यूजिंग देयर विल बी ए वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर। इसके परिणाम स्वरूप यदि हम अति दोहन करते रहे तो भविष्य में जल संकट पैदा हो जाएगा। सिमिलरली, इफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर यूज रेकलेस, दिस विल ऑल्सो बी एक्सप्लॉइटेड। इसी प्रकार यदि गैर नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से उपयोग किया जाए तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थ हैज एनफ रिसोर्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल बट not enough to classify the greed of even one person। How is this statement relevant to the discussion of development? Discuss। धरती के पास अब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन
विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। आंसर, दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट सिंस बोथ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। यह कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि संसाधन और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। As the statement claims, our Earth has enough resource, renewable and non-renewable, to satisfy everyone's need if we use them in an इकोनॉमिक मैनर। जैसा कि कथन में दावा किया गया कि हमारी पृथ्वी में पर्याप्त संसाधन है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, अगर हम उन्हें आर्थिक तरीके से उपयोग करते हैं तो हर किसी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, द कंजप्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स इज ऑल्सो क्रूशियल। विकास की स्थिरता के लिए संसाधनों की खपत और रखरखाव भी महत्वपूर्ण है। वी हैव टू यूज द रिसोर्स कीपिंग आवर एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड एंड क्लियर शो दैट देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आवर रिसोर्स। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना होगा ताकि हमारे संसाधनों का विकास और उपयोग के बीच संतुलन बना रहे। As otherwise, after a certain point of time in future, the development will be stagnant। अन्यथा भविष्य में एक निश्चित समय के बाद विकास रुक जाएगा। List a few examples of environmental degradation that you may have observed around you. Some of the example of environmental degradation in the area are as follow। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाई जो आपने अपने आसपास देखे हों। आंसर, एयर पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द इमिशन ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। देयर इज एन increase in water pollution due to shops and small factories in residential area। रिहायशी इलाकों में दुकानों और छोटे छोटे फैक्ट्रियों के कारण जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। There is an increase of water pollution due to shops and small factories residential। रिहायशी इलाकों और दुकानों में छोटी छोटी फैक्ट्रियों के कारण जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। देयर इज नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट नाइट एंड ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स अननेसेसरली ऑन द रोड्स बाय डिफरेंट व्हीकल्स। रात्रि के समय लाउड स्पीकरों के प्रयोग तथा सड़कों पर विभिन्न वाहनों द्वारा अनावश्यक हॉर्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। People throw garbage where they want। लोग जहाँ चाहे कूड़ा देते हैं। Purchase, there is no provision for that in the street or road side। शायद सड़कों या सड़क के किनारे कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं है। Sometimes people urinate in the open on the road side due to a lack of public convenience। कई बार सार्वजनिक सुविधाओं की कमी के कारण लोग सड़क किनारे खुले में पेशाब कर देते हैं। और इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ।